Hello everyone. So this is the second video, second part of chemistry chapter 3 water. And before we begin this second part, I would like to discuss some doubts which were asked to me from the exercise of the last part. And you must be aware that we skipped some of the questions from the exercise of last part, basically those based on latent heat of vaporization, latent heat of fusion. That particular topic is not there in your syllabus, so don't worry about them. And the questions which somebody asked me, some people they asked me some doubts, they are also somewhat based on those topics, but still I would discuss those questions because those are like more of a common sense kind, so you should know them. Okay, so the first doubt was asked to me from question number I think it was question number 15B, 15C, and that's it. 15B, 15C, and then there was one more. 8, yeah. Question number 8, 15B, and 15C. Yes. So first, question number 8. The properties of water are different from the properties of the elements from which it is formed. Discuss. Okay, let's discuss. See, water is H2O, which is basically made from two constituent elements. One is hydrogen and one is oxygen. Hydrogen, if you see the properties of hydrogen, it is a gas. It is combustible. Okay, it is a non-supporter of combustion, correct? And yeah, that's what you can tell about hydrogen. Oxygen, properties of oxygen, it is also a gas. It is non-combustible, but it is a supporter of combustion. Means it helps in combustion, it helps in burning, it helps in burning of other substances. Hydrogen burns itself, does not help in burning of other substances. Water, on the other hand, if you look at it, it is liquid at room temperature. It is not gas, unlike the constituents from which it is made. It is neither combustible, nor a supporter of combustion, nor a supporter of combustion. On the contrary, it is an extinguisher. You know what is an extinguisher? Extinguisher is a material which dozes off the fire. It is an extinguisher. Okay, which kills the fire. It is the enemy of fire. So the properties of water are absolutely different from its constituent. And why is that? For this, you should have knowledge of elements and compounds. So the properties of compounds will never resemble with the properties of the constituent elements from which that compound is made. It will always be different. And that is the characteristic of compound. Since water is a compound,
its characteristic does not match with its constituent, that is hydrogen and oxygen, right? And which are these properties? Whichever I told you just now. So the question was, properties of water are different from the properties of the elements from which it is formed, because water is a compound and it has its own set of properties which does not match with the properties of its constituent elements, and you should give examples of the combustibility, the supporter of combustion, the the state. All these examples you can give and discuss. Correct? Now 15th B. Ice at 0 degree centigrade has greater cooling effect than water at 0 degree centigrade. ये हमने 8th क्लास में पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में. So whenever water turns into ice, water at 0 degree turns into ice at 0 degree. Both have the temperature of 0 degree Celsius, but which is more cooler, which has more cooling effect? Of course ice, because water at 0 degree Celsius has lost some heat, that is called latent heat of fusion, to get converted into ice at 0 degree Celsius. तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आता है, ठीक है, तुम उसको कोल्ड ड्रिंक देते हो, तो मम्मी बोलती है बेटा एक कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके देना. तो तुम ये कोल्ड ड्रिंक में क्या डालना सही रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर या 0 डिग्री सेल्सियस आइस? ऑफ कोर्स आइस. You will prefer to add ice at 0 degree Celsius rather than water at 0 degree Celsius. पानी डालोगे ठंडा करने के लिए तो मम्मी चाटा मारेगी तुम. पानी डाल के कोई ठंडा करता है चीजों को? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों ना हो पानी, हम पानी नहीं डालते हैं. वी एड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज आइस is more cooler than water at 0 degree Celsius, because water at 0 degree Celsius has lost some latent heat of fusion. ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बट फिर भी याद रखो इसको, क्योंकि 10th में वापस पूछा जाएगा ये क्वेश्चन. एक चैप्टर आएगा तुम्हें 10th में, कैलोरीमेट्री, उसमें वापस आएगा ये क्वेश्चन. तो याद रखो, ये 8th में भी पढ़ा था तुमने फर्स्ट चैप्टर में, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है. Burns caused by steam are more severe than burns caused by boiling water. See, again, steam at 100 degrees Celsius and boiling water is also at 100 degrees Celsius. But out of these two, which is more hotter? Which is more hotter? Of course, steam is more hotter, because water at 100 degrees Celsius has absorbed the latent heat of vaporization, and then it has got converted into steam at 100 degrees Celsius. Both have temperature of 100 degrees Celsius, but steam is more hotter than water. And that's why steam at 100 degrees Celsius has more heat, it is more hot, and if somebody is burnt by steam, those burns are more severe. तुम्हें पता होगा एक्सीडेंट्स होते हैं जब प्रेशर कुकर फट जाता है, प्रेशर कुकर में इश्यूज होते हैं, प्रेशर कुकर फट जाता है, ठीक है, तो उसमें से जो स्टीम निकलती है और उसके अगर उसके अराउंड अनफॉर्चुनेटली कोई खड़ा है तो उसको बहुत सीवियर बर्न्स होते हैं. रादर देन अगर किसी के हाथ पे बॉइलिंग वाटर गिर गया, उससे भी बर्न्स होते हैं, लेकिन ज्यादा सीवियर बर्न्स स्टीम से होते हैं. ठीक है. आई थिंक यही डाउट्स जो मुझे याद है पूछे थे कुछ बच्चों ने. सो आई हैव क्लैरिफाइड ऑन दीज पर्टिकुलर डाउट्स. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट जो बहुत बड़ा है, सॉल्यूशंस. लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट टुडे. नोट्स अगर तुम लाइव वीडियो के साथ अगर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. देखो, लाइव लेक्चर में नोट्स नहीं ले सकते, बिकॉज टीचर बेचारा आगे बढ़ जाएगा, वो रुक नहीं सकता तुम्हारे लिए.
ठीक है, अगर रुकेगा इतना लंबा लाइव क्लास बहुत डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे तुम यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक नोट्स। टेकिंग नोट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा आधा रिवीजन उसमें उसमें ही हो जाएगा। नोट्स अगर लिया है तुमने प्रॉपरली, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। सो प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। तो solutions as mixture of solids in water. A solution is a homogeneous mixture of two or more components whose composition may be gradually changed by changing the relative amounts of components. अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। सॉल्यूशन की सबसे कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है, दैट इज सोल्यूशन होता क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? तुमने प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा है ये होमोजीनियस मिक्सचर टर्म। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, कंप्लीटली मिक्स्ड। और ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होमोजीनियस मिक्सचर का अगर एग्जाम्पल तुम पूछोगे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। क्या है? एयर। एयर में अगर तुम जनरली एयर को देखो जिसमें पोल्यूशन ना हो, धुआं ना हो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स ना हो, ऐसी एयर को, मतलब तुम्हारे रूम के अराउंड जो एयर है, तुम्हारे रूम की एयर अभी, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ दूसरे गैसेस भी है। ठीक है, बट कैन यू फिगर आउट के कौन सा गैस कहाँ है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स्ड है। अच्छा, दूसरा, इफ यू आस्क मी द एग्जांपल, शुगर वाटर, इफ यू ऐड सम वाटर इन शुगर, उसको मिक्स कर दो, डिजोल्व हो जाएगा शुगर। उसको देख के कोई बता नहीं सकता कि इसमें शुगर डिजोल्व है, जब टेस्ट करोगे तब समझ में आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट वाटर मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे बहुत सारे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में, हमारे अराउंड हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को सोल्यूशन भी हम बोलते हैं, जहां पे कॉम्पोजिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं ग्रेजुअली बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब मैं एक ग्लास में 1 चम्मच शुगर डालूं या 2 चम्मच शुगर डालूं, वो फिर भी सोल्यूशन ही रहेगा। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूं? मैं ग्लास के अंदर जो पानी है उसके अंदर शुगर की जो अमाउंट है, कंपोनेंट की जो वैल्यू है, उसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, सो सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन को अगर समझना है तुम्हें और अच्छे से, ये फॉर्मूला याद रखो। सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन दैट अलाउज वन और मोर कंपोनेंट्स टू डिसॉल्व इन इट टू फॉर्म अ सोल्यूशन इज नोन एज अ सॉल्वेंट। मतलब जो मीडियम होता है जिसके अंदर दूसरे कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं, वो मीडियम को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे वाटर में अगर शुगर डाला, सॉल्ट डाला, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। एयर में सॉल्वेंट कौन है बताओ? एयर सोल्यूशन है ना। एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर सोल्यूशन है, तो एयर में सॉल्वेंट कौन सा है? एयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हुआ सॉल्वेंट। याद रखना है। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सोल्यूशन इज नोन एज सल्यूट। ये सल्यूट का सल्यूट नहीं है, सोल्यूट है, सोल्यूट। ठीक है, ये सोल्यूट का डेफिनेशन है। Substances that dissolve in the solvent to form a solution is known as solute. Solution which is made up of two or more components is a binary solution. जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं उसमें, उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। Solutions which are made up of 3 or 4 components are called ternary or quaternary solutions respectively. मतलब दो कंपोनेंट से जो बना है वो सोल्यूशन बाइनरी होता है, 3 कंपोनेंट से बना है वो टर्नरी होता है, और 4 कंपोनेंट से बनने वाला सोल्यूशन क्वाटरनरी होता है।
Here we shall deal with binary solutions only, composed of a solute and a solvent. For example, salt crystals dissolved in water to form saline water. Saline water मतलब salt water, ठीक है, salt जिसमें dissolved होता है ऐसा वाला पानी. Saline, saline word तुमने medical terms में भी सुना होगा. IV, जिसके बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, जो हाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसको आईवी देते हैं, और आईवी के थ्रू बॉडी में क्या आ जाता है, सलाइन वाटर, सलाइन सलाइन चढ़ाया ऐसा बोलते हैं ना नॉर्मल टर्म्स में. तो ये सलाइन है, सॉल्ट वाटर है बेसिकली वो, ठीक है. उसमें इंपॉर्टेंट सॉल्ट है तुम्हारे वाइटल्स के लिए, जो तुम्हें एनर्जी देते हैं, तुम्हारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं. एनर्जी तो नहीं, केयर हाइड्रेटेड तो रखते ही है, which is absolutely necessary for the functioning of your body. Anyways, तो सलाइन वाटर में सॉल्ट सल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है. सलाइन वाटर एग्जांपल है सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन याद रखना. If the components exist in different physical states, then the solvent is that component which exists in the same phase or state as the final solution. ठीक है. तो सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन होगा, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसका जो स्टेट होगा वो फाइनल सोल्यूशन का भी स्टेट होगा. तो सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो फाइनल सोल्यूशन भी लिक्विड होगा. सॉल्वेंट अगर गैस है तो फाइनल सोल्यूशन भी गैस होगा. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, फाइनल सोल्यूशन इज लिक्विड सोल्यूशन. सो वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सोल्यूट. मतलब अगर मैं शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर का एग्जांपल लेता हूं, तो इनको मिक्स करने पे फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड. और वाटर और शुगर में से लिक्विड कौन है, वाटर. तो वाटर का जो स्टेट है वो फाइनल सोल्यूशन का भी स्टेट है, इसके लिए वाटर सॉल्वेंट है और शुगर सोल्यूट है. ठीक है. If two substances are in the same phase, the component that is in excess is termed as solvent. जो ज्यादा होता है वो solvent होता है. ठीक है. जनरली यही आइडिया है कि दो सॉल्वेंट और सोल्यूट में से, दोनों में से जो ज्यादा है वही सॉल्वेंट है. A solution may be formed by mixing a liquid with another liquid, for example water and alcohol. A solid with another liquid, sugar solution. Liquid with a gas, soda water. याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके रखते हैं, सोडा वाटर बोलते हैं उसको. सॉलिड विथ अनदर सॉलिड विच इज अलॉय. A homogeneous solution of solid into another solid is called solid solution. Common metal alloys are solid solutions. Gold used in making jewelry is a solid solution containing gold and small quantities of copper or silver. Brass is a solution of 70% copper and 30% zinc. Hence, copper acts as solvent and zinc as the solute. ठीक है. A solution in which the size of solute particles is about 10 raised to minus 10 मीटर, बहुत छोटे साइज हो जाती है जब solute के particles की, उसको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन. सोल्यूशन का पहला टाइप. ठीक है. अगर तुम मुझसे पूछो कि सोल्यूशन के टाइप क्या है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, और इसका पहला टाइप है ट्रू सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन में क्या है खासियत, तो ट्रू सोल्यूशन में साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज लेस देन 10 raised to minus 10 मीटर. 10 raised to minus 10 मीटर को तुम लोग याद है तुम्हें इसका क्या मतलब होता है, इट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम से भी छोटी, 10 raised to मीटर, 10 raised to minus 10 मीटर से भी छोटी साइज के सोल्यूट जब प्रेजेंट होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, वैसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन. In a true solution, the solute particles and solvent molecules cannot be distinguished even under a microscope. In common use, the term solution actually means true solution. तो जब भी हम solution की बात करेंगे इस चैप्टर में, हम true solution को ही मीन करके आगे बढ़ेंगे. true solution ही हमारा मीनिंग होगा उससे. Characteristics of a true solution or simply a solution.
ट्रू सोल्यूशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है? एक तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसमें सल्यूट कहाँ है सॉल्वेंट कहाँ है हम लोग उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सल्यूट पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल। डज नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटर लाइट का मतलब क्या है? तो तुम्हें मैं इंटरनेट पे दिखाना चाहूंगा स्कैटर लाइट का मीनिंग क्या है। scattering of light, scattering of light by colloidal particles. colloids तो हमें है नहीं खैर, लेकिन I can show you a very good image. टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे लाइट निकल रही है फ्लैश लाइट से, सोल्यूशन में ये लाइट का जो बीम है वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर मिल्क और वाटर के मिक्सचर को लिया जो एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, कोलॉइडल सोल्यूशन, यस कोलॉइडल सोल्यूशन है, जिसमें ये जो बीम है फ्लैशलाइट का वो विजिबल होगा, मतलब उसकी पाथ हमें दिखेगी कहां से वो बीम जा रहा है। ट्रू सोल्यूशन में कभी वो पाथ दिखती नहीं है, दैट इज द थिंग। ठीक है, इट्स कॉम्पोनेंट के नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। शुगर सोल्यूशन को तुम फिल्टर करो, शुगर और वाटर अलग होते हैं क्या कभी? नहीं, कभी नहीं होते। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना है इसको। किसकी? ट्रू सोल्यूशन की। सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। तुमने शुगर सोल्यूशन को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने भी दिन रखना है रखो, कभी भी शुगर पार्टिकल्स सेपरेट आउट नहीं होंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे वाटर में से। इसका मतलब है कि वो ट्रू सोल्यूशन है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन। तो वाटर यहाँ पे जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो वाटर का यहाँ पे क्या रोल है, ध्यान से समझ लो। Water is the most common solvent. A solution produced by dissolving a substance in water is known as aqueous solution. सबसे कॉमन सॉल्वेंट है पानी, वाटर। हमने इसके बारे में पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसको। और जो भी वाटर के सोल्यूशन होते हैं, वाटर में कोई चीज को डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन बनते हैं उसको एक्वेस सोल्यूशन बोलते हैं। बट वाटर अकेला एक सॉल्वेंट नहीं है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन वो एक अकेला सॉल्वेंट नहीं है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनको डिसॉल्व करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल, पेट्रोल, एथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड अमोनिया, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। नॉन एक्वेस लिक्विड सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं इनको, नोट कर लेना, नॉन एक्वेस लिक्विड सॉल्वेंट। द सॉल्यूशंस मेड विद इन दीज लिक्विड्स आर नोन एज नॉन एक्वेस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वेस सॉल्यूशंस, तो एक एग्जांपल देता हूं, नोट कर लेना। नॉन एक्वेस सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पेंट प्लस अल्कोहल। ये एक नॉन एक्वेस सोल्यूशन है। पेंट जो होता है ना, पेंट तुम्हारे दीवारों पे जो लगता है पेंट, दैट डिजॉल्व्स इन अल्कोहल। ठीक है, इसलिए नॉन एक्वेस सोल्यूशन है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है पेंट। अच्छा, दूसरे के एग्जांपल देता हूं, सल्फर प्लस CS2। ये CS2 क्या है? कार्बन डाई सल्फाइड। ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ नॉन एक्वेस सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें दिखेंगे नॉन एक्वेस सोल्यूशन। बट हमारा यहाँ पे जो क्राइटेरिया है दैट इज एक्वेस सोल्यूशन, बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ही है वाटर। When solvent is alcohol, the solution is called a tincture. ओ, सबसे बेस्ट एग्जांपल आ रहा है, अल्कोहल का एक सोल्यूशन है टिंक्चर। टिंक्चर ऑफ आयोडीन,
Tincture of iodine is a solution of iodine in alcohol. आई डोंट नो तुमने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं. जब हमें चोट लगती है, बचपन में बहुत चोट लगती है, घुटने छिल जाते हैं, तुम्हारी एल्बो छिल जाती है, तब डॉक्टर के पास तो खैर छोड़ो, घर पे ही तुम्हारी मम्मी तुमको कॉटन में एक ब्राउन कलर का खतरनाक लिक्विड देती है जिसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन. डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ये, डार्क ऑरेंजिश ब्राउन. और उसको एक कॉटन में लेके तुम्हारे जो वूंड है, जहाँ पे तुम्हें छिल गया है, घुटने पे, एल्बो पे, वहां पे लगाती. और जो जलता है भाई साहब, मतलब खतरनाक. ठीक है, सबको ये एक्सपीरियंस होगा शायद, वंस और ट्वाइस ऐसा हुआ होगा. तो ये टिंचर ऑफ आयोडीन है. इट इज टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ डिसइंफेक्टेंट. इट इज अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. मतलब अल्कोहल में आयोडीन को मिक्स किया हुआ है. ये डिसइंफेक्टेंट है, ये जर्म्स को किल कर देता है. कोई भी घाव पे इसको लगाओगे तो जो जर्म्स वहां पे आ जाएंगे उसको वो किल कर देता है. ठीक है. डाइल्यूट सोल्यूशन. चलो सोल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं हम. सोल्यूशन का और एक दो टाइप है जो आगे हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. So dilute solution is the solution in which the amount of solute is rather small compared to the mass of solvent. मतलब जिसमें solute कम होता है और solvent ज्यादा होता है. ठीक है, उसको dilute solution बोलते हैं. Concentrated solution is a solution in which amount of solute is relatively large for a given mass of solvent. तो मेरे पास दो ग्लास है, दोनों में पानी है. एक में मैं 1 चम्मच शुगर डालता हूं, दूसरे में 10 चम्मच शुगर डालता हूं. जिसमें ज्यादा शुगर है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, जिसमें कम शुगर है वो डाइल्यूट सोल्यूशन. सिंपल, बहुत इजी है याद रखना है. सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में दूसरी बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ये बुक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है. इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. जो सोल्यूशन के अंदर ज्यादा सोल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. इसका नोट कर लो डेफिनेशन. अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. जो सोल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर हम ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. एक एक्सपेरिमेंट से वो लोग ने इसको एक्सप्लेन किया है. 100 ग्राम हमने लिया है डिस्टिल्ड वाटर. 100 ग्राम्स क्या लिया है? डिस्टिल्ड वाटर, बीकर के अंदर. इसमें 1 ग्राम नाइटर डाला है. नाइटर क्या है? नोट कर लो, नाइटर क्या है? नाइटर इज कॉमन नेम फॉर पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम. T नहीं होता, सिंगल टी होता है, मेरी गलती है. नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका कॉमन नेम है नाइटर. ठीक है, सॉल्ट है ये, पोटेशियम का सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट. इसको 1 ग्राम लेना है, 100 ग्राम में मिक्स करना है. इसको डिजोल्व हो जाएगा ये. फिर और 1 ग्राम डालो, वो भी डिजोल्व हो जाएगा. और ऐसे 1-1 ग्राम करके नाइटर डालते रहो 100 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में, वही बीकर में. ठीक है, दूसरा नए बीकर में नहीं डालना है, वही बीकर में 1 ग्राम डाला, फिर दूसरा ग्राम 1 ग्राम डाला नाइटर, और उसको डिजोल्व करते रहे. इसको हर एक ग्राम डालने के बाद विगरसली स्टर करना मत भूलना, नहीं तो ये डिजोल्व नहीं होगा इजीली. एक स्टेज आएगा उसके बाद ये नाइटर डिजोल्व नहीं होगा एट दैट टेम्परेचर. तुम उसको हीट नहीं कर रहे हो, तुम उसको रूम टेम्परेचर पे ही नाइटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जा रहे हो. और एक स्टेज ऐसा आएगा कि नाइटर अब तक जितना भी डाला था वो सब डिजोल्व हो गया, बट अब जो नाइटर है वो डिजोल्व नहीं हो रहा. अब तुम्हें दिखेगा कि वो जो नाइटर है, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट है, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया. और कितना भी उसको देर तुम उधर छोड़ दो या कितना भी उसको स्टर कर लो, इट विल नॉट गेट डिजोल्व. अब हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया. मतलब इसमें और ज्यादा सोल्यूट हम डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर नहीं कर सकते. तो ऐसा सोल्यूशन जिसपे ज्यादा
सोल्यूट हम लोग डिजोल्व नहीं कर सकते एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. सो दिस इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन of niter in water, and it cannot dissolve any more of the solute without changing its temperature. तो तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इसका टेम्परेचर हम चेंज करेंगे, क्या इसको हीट करेंगे तो हम लोग क्या ये एक्स्ट्रा नाइटर को डिसॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं. लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन पहले हम लोग को जो समझना है दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. क्या है सैचुरेटेड सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट can be dissolved by stirring it or keeping it for a long time, by doing anything without changing its temperature. This kind of solution is known as saturated solution. तो यहां पे एक चीज लिखी है, a solution is homogeneous mixture of a solute in a solvent. Its composition may vary till a saturated solution is obtained at a particular temperature. सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है. लेकिन जब वो सैचुरेटेड बन जाता है तो उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है एट दैट गिवन टेम्परेचर. हर एक सोल्यूशन का एक गिवन सैचुरेशन पॉइंट होता है, उससे ज्यादा सॉल्वेंट उसमें तुम डिसॉल्व नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर ऐसे सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमने लिया और उसको कूल किया तो क्या होगा? कूल करने पे उसकी सोल्यूबिलिटी, किसकी सोल्यूबिलिटी? सॉलिड की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी. अगर उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, मतलब अगर एक सोल्यूशन का टेम्परेचर को हमने लो कर दिया, उसको कूल किया, तो क्या होगा पता है? पार्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड सोल्यूट सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. पार्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड सोल्यूट सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. मतलब जो डिसॉल्व्ड था वो भी अनडिसॉल्व्ड हो जाता है. ये दो तरीके से होता है, ठीक है, दो तरीके से होता है. मैं तुम्हें यहां पे बताता हूं. तुम्हारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन को या तो तुम कूल करो या तो उसको लेफ्ट आउट इन ओपन रखो, खुले में रख दो इसको. सैचुरेटेड सोल्यूशन को या तो कूल करो या तो यू कैन लेफ्ट इट आउट, लीव इट आउट इन ओपन, ठीक है. तो क्या होगा पता है इसका आउटकम? इसका आउटकम ये होगा कि सम ऑफ द डिसॉल्व्ड salts will separate out. Some of the dissolved salts will separate out. कुछ जो dissolved salts होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब वो सोल्यूशन से अलग हो जाएंगे. Some of the dissolved salts will separate out, ठीक है. पार्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड सोल्यूट सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो सेपरेट हो जाएंगे. तो तुम्हें दिखेगा कि अगर तुम किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल कर रहे हो तो उसके कंटेनर के बॉटम में कुछ क्रिस्टल्स अपीयर हो गए. तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, जब हम लोग कूल करते हैं किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन को तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होने की वजह से जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड सोल्यूट थे उनको अब जगह नहीं मिलती डिसॉल्व रहने के लिए. तो ये सारे जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट थे अब वो अनडिसॉल्व्ड हो जाएंगे, एक साथ आके क्रिस्टल्स बना लेंगे. The remaining solution is still a saturated solution but at a lower temperature. A saturated solution can also be made unsaturated by adding more solvent to it. More solvent मतलब अगर मेरे पास एक बीकर में एक सोल्यूशन है जो सैचुरेटेड है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है और तुम सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो सेपरेट आउट हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा.
अगर तुम्हें ऐसे सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाना है तो उसमें ज्यादा सॉल्वेंट डाल दो, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड या जो भी हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सब्सटेंस, उसको ऐड करो, ठीक है, तो वो वापस अनसैचुरेटेड बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें और सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड का उल्टा। और एक चीज है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, a solution that holds more solute than it can theoretically do at room temperature is super saturated solution। मतलब हमने कुछ बैकडोर मेथड से चीटिंग किया, जैसे एक सॉल्वेंट था, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट को होल्ड कर सकता है, डिसॉल्व रख सकता है, लेकिन हमने कुछ ऐसा झोल किया कि ये सॉल्वेंट अब ज्यादा सोल्यूट अपने अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर डिसॉल्व रख सकता है। तो ये क्या हमने टेक्निक लगाई, ठीक है, देखो टेक्निक सुन लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तुम्हारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ऑलरेडी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट प्रेजेंट है, वैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करना है एंड डिसॉल्व सम मोर सोल्यूट टू इट, उसमें थोड़ा सा और सोल्यूट डिसॉल्व करना है, ठीक है, देन कूल इट बैक टू रूम टेम्परेचर, फिर उसको ठंडा होने दो, तो तुम्हें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा, सिंस इट होल्ड्स मोर सोल्यूट देन इट कैन थियोरेटिकली होल्ड एट दैट टेम्परेचर। मतलब ये मेथड से क्या होगा कि तुम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हो तुम्हारे सोल्यूशन को। कैसे? तुम पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लो, फिर तुम उसको हीट करो, हीट करने पे ये वापस अनसैचुरेटेड बन जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगे और सोल्यूट को वो डिसॉल्व करने लायक हो जाएगा अपने अंदर, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इज यू ऐड मोर सोल्यूट एंड डिसॉल्व इन इट। अब तुम उसको ठंडा होने दो, नेचुरली क्या होगा, अब जब वो ऑलरेडी डिसॉल्व सोल्यूट है वो वापस अनडिसॉल्व नहीं होगा, वो वापस सेपरेट आउट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज तुमने क्या किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, उसमें डायरेक्टली सोल्यूट को ऐड नहीं किया, उसको तुमने हीट करके फिर सोल्यूट को ऐड किया, फिर उसको नेचुरली ठंडा होने दिया, उसका टेम्परेचर तुमने नेचुरली ठंडा होने दिया, ठीक है, तो वो अब ज्यादा सोल्यूट को होल्ड कर पाएगा। सो इसका याद रखना डेफिनेशन, a super saturated solution at a particular temperature is one that is more concentrated, which contains more solute than its saturated solution at room temperature, at that temperature, ठीक है। Preparation of super saturated solution, a saturated solution of a solute, say potassium nitrate, is prepared in slightly warm water। कैसे करना है इसको, थोड़ा सा वार्म वाटर में हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट या नाइटर का एक सोल्यूशन बनाएंगे सैचुरेटेड। On cooling this solution, the excess niter does not separate out. This solution contains more solute than it can hold at room temperature and therefore it is known as super saturated solution। ये सब ना टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी टर्म्स जो छोटी छोटी टर्म्स है, डेफिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में देखो क्या लिखा है, it is possible to bring down the temperature of a saturated solution a little without the excess solution crystallizing out। हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हैं, उसमें से जो सोल्यूट है उसको क्रिस्टलाइज बिना करे। कैसे? उसको एक ध्यान रखना है तुम्हें, एक पॉइंट, कि उसमें कोई सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज नहीं होनी चाहिए, नो सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, इज द सोल्यूशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड फिजिकली, इट इज लेफ्ट स्टैंडिंग स्टिल इन अ कंटेनर। इसको तुम्हें मिक्स नहीं करना है, हिलाना नहीं है, शेक नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही स्टैंडिंग स्टिल इन इट्स कंटेनर। तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम भी हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ सोल्यूट क्रिस्टलाइजिंग आउट नहीं होगा, और ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से पढ़ लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन is the amount of solute dissolved in a given quantity of that solution।
It can be expressed in many ways. For example, मास परसेंट. देखो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है इतना डिटेल में तुम्हें नहीं पूछेंगे, लेकिन डेफिनेशन हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन की जो डेफिनेशंस है वो क्लियर होनी चाहिए. हमारे माइंड में कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन में पहली चीज जो तुम्हें समझनी है दैट इज मास परसेंट. It is defined as the mass of solid solute in grams present in 100 grams of solution. It is mostly used when solute is solid and solvent is liquid. ठीक है, मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का एक फॉर्मूला देख लो जिससे तुम्हें डेफिनेशन लर्न हो जाएगी इजीली. मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. It is mostly used when the solute is solid and solvent is liquid. ठीक है, तो ये जो मास परसेंट है वो हम सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के केस में हम लोग यूज करेंगे इसको. फॉर एग्जांपल, तुमने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया किसमें? 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया. तो कॉन्सेंट्रेशन ये सोल्यूशन का कितना होगा? मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, 10 प्लस 90 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन? 10%. ये होता है एक तरीका कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने का, मास परसेंट. दूसरा तरीका है वॉल्यूम परसेंट. ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर्स ml present in 100 ml of solution. It is mostly used when solute and solvent both are liquid. जब सोल्यूट भी लिक्विड होता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड होता है, तो हम लोग वॉल्यूम परसेंट यूज करते हैं. तो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? वॉल्यूम परसेंट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, दोनों को ऐड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलेगा तुम्हें, मल्टीप्लाइड बाय 100. फॉर एग्जाम्पल, हमने 30 ml अल्कोहल लिया और 30 ml अल्कोहल को हमने मिक्स किया 70 ml वाटर के साथ, तो 100 ml सोल्यूशन मिला. तो वॉल्यूम परसेंट या फिर ये कॉन्सेंट्रेशन ये सोल्यूशन का कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 30%. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. वैसे मैंने तुम्हें बताया एक बात कि इसके न्यूमेरिकल्स जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एक्सरसाइज में होंगे और तुम करोगे ही नहीं, उसको छोड़ दोगे. करना है तुम्हें. एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको तुम्हें अटेम्प्ट करना है, लेकिन एग्जाम में कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आए उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा कम है. ठीक है, ये दिस इज व्हाट आई बिलीव. तो एज पर माय पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द पेपर्स ऑफ योर स्कूल, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स देखो. एग्जांपल नंबर 1 क्या है? 2.5 liters of alcohol is present in 10 liters of aqueous solution of alcohol. Calculate volume percent. क्या बोल रहे हैं ये लोग? 2.5 liters of alcohol is present in 10 liters of aqueous solution of alcohol. Calculate the volume percent. अब देखो, हमारे पास सल्यूट का वॉल्यूम है 2.5 लीटर्स, सोल्यूशन का ही वॉल्यूम दे दिया डायरेक्टली, कितना है? 10 लीटर्स. तो हमें पूछा है कि वॉल्यूम परसेंट मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना होगा. चलो निकालते हैं. सो 2.5 अपॉन 10 इंटू 100, 0 कट, 2.5 इंटू 10 25%. इसका कॉन्सेंट्रेशन ये सोल्यूशन का है 25%. करेक्ट. नेक्स्ट देखो, 50 grams of sugar is dissolved in 2.45 kg of water. देखो यहां पे ये ग्राम में है और ये kg में है वाटर. ठीक है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. सबसे पहले तो kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे हम. ठीक है, अब मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे. 2450 प्लस 50 2500 और कॉन्सेंट्रेशन मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. 50 अपॉन 2500 इंटू 100 करोगे 2% आएगा.
इजी है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो ये चैप्टर का ये जो पार्ट है बी पार्ट, मैं समझूंगा कि केमिस्ट्री में ये वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली, इट इज नॉट entirely based on information, it has certain logic attached to it। तो ऐसा मत समझना कि ये सब रट्टा मार लूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, तुम्हें समझना भी पड़ेगा चीजें, तब जाके ये इजीली लर्न होगी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, चलो solubility, different substance dissolve to different extents in the same volume of a given solvent। तुम्हारे पास सॉल्वेंट एक ही है, उसका वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग एक्सटेंट से वो सेम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स दे हैव मतलब सब्सटेंसेस मतलब सल्यूट, हर एक सल्यूट की अलग अलग सल्यूबिलिटी होती है। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करना चाहता हूं, तो ये पॉइंट तुम्हें नोट कर लेना चाहिए। डिफरेंट सल्यूट्स विल हैव नहीं यार, विल कैसे बोलोगे, डिफरेंट सल्यूट्स हैव डिफरेंट सल्यूबिलिटीज। सल्यूबिलिटी क्या होती है? सल्यूबिलिटी इज द टेंडेंसी टू डिसॉल्व, टेंडेंसी टू डिसॉल्व। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, टेंडेंसी टू dissolve। Different solutes have different tendency to dissolve or different solubilities in a given amount of a solvent। एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास, उसमें अलग अलग सल्यूट अलग अलग सल्यूबिलिटी एग्जिबिट करते हैं, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं एक कंटेनर ले लूं, एक ग्लास ले लूं सपोज, ठीक है, इस ग्लास में अगर मेरे पास पानी है, ठीक है, और ऐसा और एक ग्लास ले लेता हूं। सबसे बेस्ट पार्ट है ना ये सॉफ्टवेयर की क्या है पता है? कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। आई जस्ट लव डूइंग दिस बिकॉज इट्स सो इजी टू शो यू। क्या हो गया, ना टेंशन क्यों ले रहे? हाँ, ये मेरे पास दो सिमिलर ग्लास है और दोनों में सिमिलर अमाउंट ऑफ पानी है। ठीक है, एक बात याद रखना कि एक में मैं शुगर डालता हूं, जितना डाल सकता हूं उतना, और दूसरे में मैं सॉल्ट डालता हूं। ठीक है, तुम ये नोट करोगे अगर ये तुम एक्सपेरिमेंट करोगे घर पे। देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट घर पे मार खाने के रिस्क से करना। अगर तुमने दो ग्लास लिए सिमिलर और उसमें शुगर और सॉल्ट डालते गए तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, मतलब तुम्हें समझ में तो आ जाएगा सेल्युबिलिटी के बारे में, लेकिन मम्मी से चाटा खाने के लिए रेडी रहना, चप्पल खाने के लिए, क्योंकि तुम इतना शुगर और सॉल्ट वेस्ट करने वाले हो और पता नहीं उसको तुम्हें पीना पड़ेगा एंड में, याद रखना। तो ये मत करना, ठीक है। इसमें अगर शुगर तुम ऐड करते जाओ, इट विल अप्रोक्सीमेटली डिसॉल्व 10 टाइम्स मोर शुगर, 10 टाइम्स मोर शुगर देन इट्स ओन कैपेसिटी। मतलब जितना पानी है उससे 10 गुना ज्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन सॉल्ट उतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मे बी टू टाइम्स भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, मे बी इसका 1/3, ये पानी है उसका 1/3 अमाउंट का सॉल्ट तुम इसमें ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब शुगर उसी वाटर में, उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, शुगर की या सॉल्ट की? ऑफ कोर्स शुगर की। तो अब समझ में आया सॉल्युबिलिटी क्या है, टेंडेंसी टू डिसॉल्व। किसकी टेंडेंसी टू डिसॉल्व ज्यादा है, शुगर की या सॉल्ट की? ऑफ कोर्स शुगर की।
ठीक है, चलो ओके। तो सल्यूबिलिटी पे आते हैं वापस। फॉर एग्जाम्पल, द masses of sodium chloride and potassium nitrate that dissolve in 100 grams of water at 40 degrees Celsius are 36.5 grams and 65 grams respectively। यहां पे वो लोग ने एग्जाम्पल लिया है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का। टेम्परेचर फिक्स कर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, वाटर का अमाउंट भी फिक्स है 100 ग्राम्स। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पे 36.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है और 65 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। ये दिखाता है दिस प्रूव्स के टेंडेंसी टू डिसॉल्व या सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है, पोटेशियम नाइट्रेट या नाइटर की। सॉल्ट की, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट की, सोडियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी नाइटर से कम है। ठीक है, समझ में आया। The solubility of a solute in particular solvent at a given temperature is equal to the maximum number of grams of the solute necessary to saturate 100 grams of that solvent at that temperature। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको समझ के याद करना। Solubility of a solvent in a particular solubility of a solute in a particular solvent at a given temperature, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, is equivalent to, मतलब it is equal to द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, मतलब कितना मैक्सिमम सल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है, नेसेसरी टू सैचुरेट, उसको सैचुरेट कर सकता है उसमें डिसॉल्व होके 100 ग्राम्स ऑफ दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। ये उसकी सल्यूबिलिटी होती है। अ सब्सटेंस दैट इज नेग्लिजिबली a substance that has negligible solubility is called insoluble। सिल्वर क्लोराइड, उसकी सल्यूबिलिटी क्या है पता है, 0.0000015 ग्राम्स। मतलब 100 ग्राम में सिर्फ 0.0000015 ग्राम्स ही सिल्वर क्लोराइड सल्यूबल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, सब्सटेंस दैट इज मोर देन नेग्लिजिबल बट लेस देन हाई सल्यूबिलिटी इज कॉल्ड स्पेरिंगली सल्यूबल। बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन दिया है तुमको, क्योंकि ये ना केमिस्ट्री में हमें बार बार ये आता है। स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या है सर, स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या है सर? स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब देखो, ये दूसरे बुक्स में ये सब नहीं मिलने वाला तुमको, ये सब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है तुमको। आई एम ग्लैड कि मैं ये बुक से सिखा पा रहा हूँ। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये उससे सिखाओ इससे सिखाओ, मैं तो बोल रहा हूँ ये सही है यार, हमको इतना एक्सपोजर मिल रहा है एंड दैट इज सो ग्रेट। ओके, सो स्पेरिंगली सोल्यूबल क्या होता है, मतलब नेग्लिजिबल से ज्यादा लेकिन हाई सोल्यूबिलिटी से कम सोल्यूबिलिटी जिस सब्सटेंस की होती है उसको स्पेरिंगली सोल्यूबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी है 0.17 ग्राम्स। इसका मतलब है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर, 0.17 ग्राम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो सकता है, जो सिल्वर क्लोराइड से तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर तुम सोडियम क्लोराइड से कंपेयर करो तो बहुत कम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की solubility। So that is why calcium hydroxide is sparingly soluble। A substance which has high solubility such as sodium chloride is simply called soluble। ठीक है, determination of solubility of a solute at a particular temperature। Again यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आई वुड डायरेक्टली गिव यू द फॉर्मूला। सल्यूबिलिटी का फॉर्मूला यहां पे देखो, सिर्फ इतना याद रखो, बहुत सिंपल है ये। सल्यूबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे मास ऑफ सोल्यूशन नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला था जो पहले वाला था, ये कॉन्सेंट्रेशन वाला। सल्यूबिलिटी का फॉर्मूला अलग है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये सल्यूबिलिटी का फॉर्मूला है, तुम किसी भी सब्सटेंस की सल्यूबिलिटी के फॉर्मूला से निकाल सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग सल्यूबिलिटी क्या है देखो, साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, जितनी छोटी होगी साइज सल्यूट पार्टिकल की, द ग्रेटर इज इट्स टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सॉल्वेंट एंड देयरफॉर ग्रेटर इज द सल्यूबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। देखो, हम लोगों को डिसॉल्व करना है शुगर, किसमें, वाटर में। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो वो जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं ना, बड़े 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 शुगर क्रिस्टल, छोटे नहीं बड़े वाले, शुगर क्यूब्स जैसे
क्रिस्टल्स शुगर के, वो है, और दूसरा है पाउडर्ड शुगर। तो पाउडर्ड शुगर अच्छा है सल्यूट डिसॉल्व होने के लिए, या फिर शुगर क्रिस्टल्स अच्छे हैं? ऑफ कोर्स पाउडर्ड शुगर, बिकॉज पाउडर्ड शुगर का जो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है वो छोटा है, तो ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है सॉल्वेंट से, इसलिए इजिली डिसॉल्व हो रहा है, तो सोल्यूबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी। स्टरिंग, दिस ब्रिंग्स मोर ऑफ सॉल्वेंट इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूट। स्टरिंग से क्या होता है कि ज्यादा सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ कॉन्टैक्ट में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आता है, और इंक्रीज होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। टेम्परेचर, solubility of a gas in liquid always decreases with rise in temperature, लेकिन solubility of most solids increases with rise in temperature। तुम अगर कोई भी सॉलिड ले लो, सॉलिड, तो उसका solubility टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा सॉलिड सोल्यूबल होगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट 20 डिग्री पे 31.6 ग्राम सोल्यूबिलिटी एग्जिबिट करता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, लेकिन 60 डिग्री ऑफ वाटर अगर ले लो तुम, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो 63.9 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व होगा एट 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गैसेस में उसका उल्टा है। गैस में, गैस का जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में, वो हमेशा डिक्रीज होता है विथ राइज इन टेम्परेचर। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, बहुत ही इजी है एग्जांपल समझने के लिए। कोल्ड ड्रिंक या फिर एरिएटेड, एरिएटेड का स्पेलिंग क्या है? एरिएटेड नहीं यार, एरेटेड, एरेटेड, माय गॉड कुछ भी हो रहा है भाई। एरिएटेड ड्रिंक्स, एरेट एरिएटेड क्या है यार स्पेलिंग? ड्रिंक्स, रुक रुक आएगा भी आएगा, ऐसा होता है बहुत बार होता है, मैं इसको एडिट नहीं करता। हाँ ये देखो, ए रेटेड ही है यार ये, ए रेटेड, ए ई, एरिएटेड, एरिएटेड बोलते हैं, लेकिन ये एरेटेड ड्रिंक्स है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते होंगे यार? लेट मी सी दिस। ए रेटेड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्योंकि ए रेटेड ही है ये तो। प्रोनाउंसिएशन, यस, चलो चेक करते हैं। बहुत मजा आता है विक्स की गोली लो, ये खिच खिच दूर करो। विक्स की गोली, माय गॉड, बोल दो भाई। अच्छा जलेबी खुलेगी फिर बोलेगा। aerated, 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 ए रेटेड है ये, ए रेटेड ड्रिंक्स, ए रेटेड ड्रिंक्स है, तो कोई भी बच्चे ए रेटेड ड्रिंक्स नहीं पियेंगे, ठीक है? ए रेटेड ड्रिंक, एरिएटेड, ए रेटेड ड्रिंक, मजा आ गया। चलो कुछ तो नया सीखा, ऐसा अच्छा है यार, सीखने को मिलता है सब। ए रेटेड ड्रिंक्स, AERATED, ए रेटेड ड्रिंक्स। क्या होता है ए रेटेड ड्रिंक्स? तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल नहीं होता, जो तुम्हारे पापा पीते हैं वो नहीं होता है ये सब, ठीक है? ए रेटेड ड्रिंक्स मतलब हम सब पीते हैं, फैमिली ड्रिंक्स होती है। ए रेटेड क्या है? ए रेटेड ड्रिंक्स मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेसिकली सॉफ्ट, हार्ड ड्रिंक्स नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है? वैसे बियर भी ए रेटेड ड्रिंक, लिटरली बियर ए रेटेड ड्रिंक ठीक है? सो कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर सोडा वाटर। इसमें क्या होता है पता है? जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, और जो सल्यूट होता है, सल्यूट, दैट इज गैस। और कौन सा गैस होता है मेनली? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर पे हम लोग वाटर में डिसॉल्व करके उसको सील कर देते हैं वाटर को। जब उसका सील ब्रेक होता है, बेसिकली जब उसका जो कैप होता है, जब तुम उसको अनकैप करते हो, तो क्या होता है? तुम्हें फिज या एफरवेसेंस फील होता है, और फिज के साथ यह गैस बाहर निकल जाता है। तो क्या हुआ बेसिकली?
तुमने जैसे प्रेशर रिलीज किया, गैस जो डिजोल्व था वो अब अनडिजोल्व हो गया, मतलब गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है ना। अच्छा, दूसरी एक बात, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। हम लोग ये हमेशा एरेटेड ड्रिंक्स को कूल क्यों रखते हैं? बिकॉज लोअर टेम्परेचर पे जो गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा गैस डिजोल्व रह सकता है, इसलिए इसको कूल रखते हैं, चिल्ड रखते हैं, चिल्ड सर्व भी करते हैं। दूसरी एक बात याद रखो कि क्यों चाहिए गैस सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में गैस का जरूरत क्या है? बिकॉज दिस गैस, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिजोल्व इन वाटर, इट गिव्स इट दिस टैंगी फील एंड टेस्ट। जो टैंगी फील एंड टेस्ट है ना, वो सोडा वाटर या एरेटेड ड्रिंक्स को ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। ठीक है, सो जितना प्रेशर ज्यादा उतनी सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड ज्यादा, जितना टेम्परेचर कम उतनी सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड ज्यादा। ठीक है, याद रखना है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले सोल्यूबिलिटी कर्व्स। उससे पहले एक पॉइंट हम लोग पढ़ना भूल गए। All these factors affect solubility because in process of dissolution, the particles of solute merely occupies the space between the particles of solvent without undergoing chemical change. ठीक है, ये फैक्टर्स solubility को इफेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डिसोल्यूशन के प्रोसेस में पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट सिर्फ स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, केमिकल चेंज नहीं होता, न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते हैं। इसके लिए ये सोल्यूबिलिटी के फैक्टर्स ये तीनों है, साइज ऑफ सल्यूट, पार्टिकल, स्टरिंग और टेम्परेचर। ठीक है, ओके। सोल्यूबिलिटी कर्व क्या होता है? A solubility curve is a line graph that plots changes in solubility of a solute in a solvent against changing temperature. Variation in solubility of a given substance with temperature can be shown by means of solubility curves. टेम्परेचर के साथ साथ solubility में क्या चेंज आता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, एक पर्टिकुलर सोल्यूट की, ये हमें उसके solubility कर्व से पता चलता है। किसका solubility कर्व? सोल्यूट का। सोल्यूट का ही होता है हमेशा। Here solubility is plotted along the ordinate मतलब y axis and temperature along axis or x axis. Solubility curves of some common compounds are shown in the figure. Let's see. अब इसको देख के ही समझ में आता है क्या हो रहा है, solubility कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसको देख के मुझे बताओ सबसे ज्यादा solubility किसकी है? सबसे ज्यादा solubility है पोटेशियम नाइट्रेट की, हाईली सोल्यूबल। ठीक है, और उसका कर्व सबसे स्टीप है, मतलब उसका स्लोप सबसे ज्यादा है। 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कौन सा सोल्यूबल होता है वाटर में? सोडियम नाइट्रेट। 0 डिग्री पे भी अराउंड 70 ग्राम्स डिजोल्व हो जाता है, फिर उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, इतनी नहीं। अच्छा, कौन सा सोल्यूबिलिटी, कौन सा इसमें से सबसे स्पेयरिंगली सोल्यूबल है? कैल्शियम सल्फेट। इनफैक्ट उसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है आफ्टर 50 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है? पोटेशियम सल्फेट की, उसके बाद सोडियम क्लोराइड की, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड की। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिजोल्व होता है? अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। और पोटेशियम ब्रोमाइड 50 डिग्री सेल्सियस जितना डिजोल्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर उसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ऑल दीज थिंग्स आर विजिबल फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, in an endothermic process, the solubility of solute increase with the increase in temperature. For example, solubility of potassium nitrate increases with rise in temperature. In an endothermic process, मतलब जिसमें heat absorb होती है, the solubility increases on lowering the temperature. एनोथर्मिक बोला है, एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, solubility of calcium hydroxide in water decreases on increase in temperature. ये एक्सोथर्मिक है, दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में solubility इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में
जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे हम लोग तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है. Anomalous solubility. There are some salts whose solubilities first increase and then decrease with the rise in temperature. For example, sodium sulfate. यहाँ पे सोडियम सल्फेट का कोई कर्व दिया नहीं है. सोडियम सल्फेट का कर्व यहाँ पे दिया है अलग से. 32.8 डिग्री सेल्सियस तक उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है और सडनली 32.8 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी में डिप आएगा एक. ठीक है, वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा. इसका जो कॉमन नेम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का कॉमन नेम है ग्लोबर सॉल्ट. ठीक है. उसके बाद 32.8 डिग्री सेल्सियस के बाद अब जब उसकी सोल्यूबिलिटी गिरेगी तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा. एनहाइड्रस मतलब ड्राई हो जाएगा. 32.8 डिग्री सेल्सियस तक वो हाइड्रेटेड था. हाइड्रेटेड मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था उसमें, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लेकिन जैसे ही 32.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच करता है तो वो सिर्फ Na2SO4 बन के रह जाता है, मतलब एनहाइड्रस ड्राई बन जाता है. ठीक है. एप्लीकेशन क्या है सॉल्युबिलिटी कर्व के? शेप ऑफ द कर्व इंडिकेट्स हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर. The solubility of a substance at a particular temperature can be determined from the curve. Solubilities of different solute in a solvent at different temperatures can be compared by comparing the respective solubility curves plotted on the same chart, जो हमने अभी किया. The effect of cooling hot solutions of different substances can be found from the curves. When saturated solution is prepared at 40 degrees Celsius and then it is cooled to 15 degrees Celsius, some salts get precipitated out. On the other hand, if a saturated solution is heated to a higher temperature and then it becomes unsaturated, more solute can then be dissolved in this solution now. तो solubility curve से हमें ये समझ में आता है कि कभी कौन सा salt का solubility increase होगा, कभी वो precipitate out होके उसको separate कर सकते हैं. These all things we can find out. कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लो. सॉल्ट एग्जाम्पल सोल्यूबिलिटी के. 12 ग्राम्स हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है. किसका? पोटेशियम क्लोराइड का, वाटर के साथ 20 डिग्री सेल्सियस पे. व्हेन इवेपोरेट्स टू ड्राइनेस लीव्स अ रेसिड्यू, सॉलिड रेसिड्यू ऑफ 3 ग्राम्स. कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. देखो पोटेशियम क्लोराइड हमें एंड में कितना मिला? 3 ग्राम. ठीक है, 3 ग्राम ऑफ सॉलिड है हमारे पास. और सॉल्वेंट कितना था? सोल्यूशन तो था 12 ग्राम, उसमें से 3 ग्राम निकाल दो सल्यूट, तो 9 ग्राम रह जाएगा तुम्हारा सॉल्वेंट. ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी कितना होगा? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, दैट इज 33.3 ग्राम्स. सोल्यूबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 33.3 ग्राम. पूरा आंसर लिखना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Find the weight of sodium nitrate required to prepare 60 grams pure crystals from its saturated solution at 70 degrees Celsius. The solubility of sodium nitrate is 140 grams at 70 degrees Celsius and 100 grams at 25 degrees Celsius. अच्छा, हमें बोला है कि weight of sodium nitrate required to prepare 60 grams of pure crystals of it from its salt solution at 70 डिग्री सेल्सियस और उसकी सॉल्युबिलिटी दी है. देखते हैं कैसे किया है. तो सॉल्युबिलिटी 70 डिग्री सेल्सियस पे 140 और 25 डिग्री सेल्सियस पे 100. अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ solution is cooled from 70 degree Celsius to 25 degree Celsius is 40 grams. So to obtain 40 grams of crystals, sodium nitrate is taken as 140 grams. To obtain 60 gram crystals, so sodium nitrate required will be unitary method यूज किया है कि अगर 140 ग्राम सोडियम नाइट्रेट अगर होता तो हमें कूल होने के बाद 40 ग्राम मिलता. ठीक है, तो अगर 60 ग्राम सोडियम क्लोराइड के सोडियम नाइट्रेट के क्रिस्टल चाहिए तो कितना सोडियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड रहेगा? सो 140 अपॉन 40 इंटू 60, 210 ग्राम अगर ओरिजिनली सोडियम नाइट्रेट है 70 डिग्री सेल्सियस पे और उसको तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे कूल करोगे
तो 60 ग्राम्स क्रिस्टल तुम्हें प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यूनिटरी मेथड से किया है। अगेन टेलिंग यू, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, याद है, बताया था मैंने, एरेटेड एरेटेड, हाँ यही है एरेटेड। क्या होता है एरेटेड में? इफ प्रेशर इंक्रीजेस solubility of gases in water increases. If pressure decreases solubility of gases in water decreases. कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है वो लोगों ने। हेनरीज लॉ एक लॉ है जो ये solubility को कंट्रोल करता है गैसेस की लिक्विड में। ठीक है, बट ये लॉ को याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल याद रखना। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो solubility ऑफ गैस डिक्रीज होगी। ठीक है, बॉइलिंग वाटर लूज करता है अपना टेस्ट बॉइलिंग करने पे। क्यों? बॉइलिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर का जो टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है, उसमें से सारे गैस एस्केप हो जाते हैं, इसलिए उसका टेस्ट चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल क्या है याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी टेक्स्ट बुक में ये सब इतना डिटेल में नहीं बताते। क्रिस्टल इज अ होमोजीनियस सॉलिड ऑफ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप. It has symmetrically arranged smooth plane surfaces which meet forming sharp edges. Crystallization is a process by which crystals of a substance are obtained by cooling a hot saturated solution. Crystals बनाने के लिए, किसी भी सॉल्ट के, किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बनाने के लिए तुम्हें उस सॉल्ट के सोल्यूशन को लेना पड़ेगा। कैसे सोल्यूशन को? सैचुरेटेड सोल्यूशन को, और उसको कूल करना पड़ेगा, तो तुम्हें उस सॉल्ट के क्रिस्टल सेपरेट होके मिल जाएंगे। ऑल क्रिस्टल्स ऑफ अ प्योर कंपाउंड आर ऑफ सिमिलर शेप, बट दोज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स मे बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर ऑल्सो। सम शेप्स इन विच क्रिस्टल्स एग्जिस्ट आर क्यूबिक, कुछ क्रिस्टल क्यूबिक होते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल क्यूबिक होते हैं, क्यूब ऑफ सॉल्ट, शुगर का भी एक्चुअली। रोम्बोहेड्रिक, रोम्बोहेड्रिक मतलब रोम्बस, जो 3 डायमेंशनल रोम्बस है वैसे क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के होते हैं। ऑक्टाहेड्रल, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ऐसे दिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल। प्रिज्मेटिक विथ शार्प एजेस, पोटेशियम नाइट्रेट या नाइटर के क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं। इन नेचर टू सेवरल क्रिस्टल्स आर फॉर्म, सम ऑफ विच आर रिकवर्ड फ्रॉम अर्थ एज मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्रेट, रूबी, सफायर, डायमंड, ये सब क्रिस्टल्स है। In some cases, their beautiful colors are due to the traces of water or impurities present in them. For example, red color of ruby is due to trace of mercury oxide present in its crystals, and blue color of copper sulfate is due to the water of crystallization present in it. In laboratory, crystals may be obtained by the following method. लेबोरेटरी में क्रिस्टल्स बना सकते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, यस, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब के क्रिस्टल हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। कैसे? बाय कूलिंग हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, सबसे इजीएस्ट मेथड। बाय स्लोली इवेपोरेटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, बहुत कॉमन मेथड है ये। बाय कूलिंग अ फ्यूज्ड मास, फ्यूज्ड मतलब मोल्टन। अगर तुम किसी भी सॉल्ट को मेल्ट करोगे और फिर उसको धीरे धीरे कूल करोगे तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे उसके। बाय सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल सब्लिमेशन से बनते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है टू प्रिपेयर लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो एक्सपेरिमेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट फॉर यू, बट आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो of this the preparation of large crystal of copper sulfate in your group, and you please watch that video, and it's very very interesting, and तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे वो लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है। you as well can read this by pausing this video right now, but I would recommend कि रीड करने के बाद वो वीडियो जरूर देखना, तो तुम्हें कैसे क्रिस्टल्स बनाते हैं लेबोरेटरी में वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीड क्रिस्टल्स और सीडिंग मेथड होता है इसका, उससे तुम्हें क्रिस्टल्स बनते हैं। चलो नेक्स्ट, वो चैप्टर तो बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। क्या करे यार, अभी आई थिंक इसको रोकना चाहिए यार, नहीं तो ये तो चलता ही जाएगा। तो हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड सब्सटेंस पे मैं रोकता हूँ ये वीडियो को, ठीक है। और इसका होमवर्क अभी तक मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा पार्ट है।
तो ये नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एक साथ होमवर्क दूंगा। तब तक तुम्हारा काम क्या है आज कि ये वीडियो देखो, नोट्स लो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, चीज़ों को समझो। और अच्छी बात है तुम्हारी टेस्ट भी है अभी 1-2 दिन में, तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, होमवर्क नहीं रहेगा तो। बट वीडियो देख के नोट ज़रूर लेना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।